Hello, everyone. This is Ruchi Doctor once again on the platform of We Capacitate, where we say, Alone I am nothing, together we capacitate. आज इस सेशन में जिसे हम कहते हैं Why Not Network Marketing, आज के सेशन में हम आपके साथ प्रेजेंट करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिनकी लाइफ की मुसाफरी सुनकर you will definitely feel amazed and so much motivated to change your life, to chase your dream and to do something better, noble, smarter in life. We have with us today in this session to guide us Why Not Network Marketing, अजय जैन. अजय जी इंदौर से हैं और अपनी लाइफ की मुसाफरी में बहुत सारे उतार चढ़ाव एक्सपीरियंस के साथ अपने जीवन को इतना सुंदर उन्होंने बनाया. हजारों लोगों की मदद करने के बावजूद भी he is just unstoppable. मैं उनके बारे में कुछ और बताना चाहूँ तो he was a pioneer in India for creating multi-corner barter exchange. It's a very unique and new concept in those days. शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि होता क्या है. इंटरनेशनल ट्रेनिंग उन्होंने कर चुके हैं. जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI के एसोसिएट भी रह चुके हैं. He is a strategic execution mentor for many organizations, many corporate houses, and there are so many n number of CEOs and CFOs of the company. Apart from that, he is a coach, trainer. 46 year of his working experience he is going to share with us. It's not possible to get everything in such a small span of this conversation, but yes, there is something he is going to share and add value in this session with all of us. हम सबसे बात करने वाले हैं Why Not Network Marketing. So अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. You took out time and came to this platform. हमें आज मिलने के लिए आए, हमसे बात कर रहे हैं. And this is an amazing time with technology. We can connect so very well and learn from each other. So Ajay ji, my audience wants to know something about you. Can start with your journey of your success story and career. I will start from the beginning. So my father came to Bombay to become hero. Okay. He could not become hero, but then he became the producer. Okay, amazing. And तनुजा, संजीव कुमार वगैरह के साथ में बनाया था, लेकिन पिक्चर आधी बनी. पिक्चर तो नहीं बनी, हम लोग डूब गए. So the whole of our school and college system was in poverty, you can say that. In debt also. My college fees was only 156 rupees. I did my printing technology, government college, 160 rupees fees, but that also we used to find difficult. Anyway, that was done. I did my printing technology. I started working in the presses. Then I also did my BCom because it was very early to do something. So one thing in my life is you say 46 years of experience. I say 92 because I was always doing two things together. तो सुबह पढ़ रहे तो शाम को बिजनेस कर रहे तो कुछ और कर रहे तो इस तरह से it was there. So the learning training कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. प्रिंटिंग भी किया, बीकॉम भी किया, कंपनियों में काम किया. फिर हम 3 भाई थे तो खुद का प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया. स्क्रीन प्रिंटिंग करके बिजनेस होता है वो स्टार्ट किया. उसके बाद में आई केम इन टच विद JCI, जूनियर चेम्बर, इट इज कॉल्ड JCs. तो मेरे को किसी ने बोला आप मेंबर बन जाओ. तभी 300 रुपए का फीस था. 77 में 300 रुपए बहुत होता था. Okay. तो मैं बोला क्या मिलेगा. तो बोलता है कि आप क्या करते हो. मैं बोला प्रिंटिंग करता हूँ. तो बोला बिजनेस मिलेगा. तो मैं 300 रुपए में बिजनेस मिलेगा. तो बोला ठीक है चलो ज्वाइन करते हैं. तब समझ में आया कि नेटवर्किंग का पावरफुल क्या होता है और लोगों के साथ में आने का क्या फायदा होता है. तब तक ये था कि मेरे को लगता था कि मैं पढ़ने में होशियार था, तो मेरे को लगा सबसे अच्छा मैं ही हूँ दुनिया में. सब JCs में आया तो पता चला अपने से 10 गुना लोग अच्छे हैं और आराम से बैठे हैं. So that is there. So that I learned. Because of JC, lot of changes happened in me. So it's a company, it's an organization where they teach you leadership skills. They not only teach you, they help you develop that skill by giving you a platform. जितना ट्रेनिंग होते गया उतना मेरे को मेरे व्यवहार में, मेरे काम में, सब में चेंज आते गया. Then I become president of a chapter and they told me, why don't you go to a train the trainer workshop?
So I went to train the trainer workshop. It's a 5 days rigorous day and night program. I got somehow passed it. They passed me. I don't know how, but I got passed. Then I started reading more book because अगर आपको कुछ करना है, presentation देना है, ट्रेनिंग देना है 10 मिनट का, तो 2 घंटा पढ़ना पड़ता है या 20 घंटा पढ़ना पड़ता है. तो वैसे वो जर्नी शुरू हुई, ट्रेनिंग की जर्नी शुरू हुई. और ट्रेनिंग की जर्नी करते करते मुझे एक बुक मिली थी, What they don't teach you in Harvard Business School, which I will tell everybody to read it. वो एक मार्क मैकॉर्मिक करके ऑथर है उसका. He is an owner of International Management Group, which is sponsor. They are the sponsoring company for Olympics. तो ओलंपिक को जितने स्पॉन्सर लेके आते हैं वो कंपनी लेके आते हैं. तो उसका पूरा स्टडी पढ़ के मुझे लगा कि बिजनेस को कोई अच्छी तरीके से किया जाता है. तो मैंने प्रिंटिंग छोड़ के पीआर में गया, पीआर छोड़ के इवेंट में गया. ऐसे बहुत करते करते आई कट द स्टोरी शॉर्ट, आई केम विथ दिस आइडिया ऑफ बार्टर एक्सचेंज, सो विच गिव मी फैंटास्टिक एक्सपोजर. उसमें भी मेरा जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था बहुत काम लगा. थिंकिंग ऑफ अ न्यू आइडिया, प्रेजेंटिंग टू पीपल, प्रेजेंटिंग इन देयर लैंग्वेज एंड क्रिएटिंग इंस्टेंट रेपो विथ एनीबडी, ऑल दैट हेल्प मी अ लॉट. And we created a company with within 5 years it became 100 crore company. Wow. In 2000 from zero. मतलब पहले मेरे पार्टनर के घर पे पलंग पे से काम करते थे, तो एक के पास टेप रिकॉर्ड पड़ा था, तो उसको बोला एक काम कर, होटल के 2000 के कूपन रख और मेरे को तेरा टेप रिकॉर्डर दे दे, और फिर बाद में जो चाहिए वो लेते रहना, अपन एडजस्ट करेंगे. तो एडजस्ट हो गया. बार्टर गिव मी a good exposure to more than 600 companies across India. वेरी गुड बिजनेस. बट ऐसा होता है कि अगर आप में कैपेसिटी नहीं है तो आप संभाल नहीं सकते हैं. तो 100 करोड़ का बिजनेस सोचना भी मुश्किल था, हो गया बहुत बड़ी बात है. सो वी कुड नॉट हैंडल इट एंड वेंट इनटू प्रॉब्लम. लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था 600 कंपनी से काम करने का, तो मुझे एक अच्छे बिल्डर ने उनके साथ ले लिया. पुणे के बिल्डर हैं, और उनके साथ आई सेट अप देयर ऑफिस एंड बिजनेस एट बेंगलोर. फिर और 2-3 साल बिल्डर के साथ में काम किया. देन हमारे जैनों में एक संस्था है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुझे सीईओ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. नॉर्मली सीए और कंपनी सेक्रेटरी को लिया जाता है, पर पता नहीं मुझे क्यों ले लिया उन्होंने. So that was a good experience. Now because of that I know practically every chain in the country. So that then they also know. So that is there. फिर और भी काम किए, अलग अलग काम किए. एक कंपनी में था जो वास्तु का काम करती है, कंपनी का नाम है सरल वास्तु. तो बिकॉज ऑफ जीतो एंड माय कनेक्टिविटी आई गॉट अ कंपनी ऑर्डर ऑफ 7 करोड़ रुपीस फॉर वास्तु कंसल्टेंसी. वास्तु इंडस्ट्री में किसी ने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया है, वो हुआ. और मेरा जो ज़्यादा ट्रेनिंग वेनिंग हुआ है वो मास्टर क्लास करके कंपनी हुआ है, जहाँ पे हम लोग बिजनेस कोचिंग करते हैं. ऐसे कर करके आई हैव कम टू नाउ 65. आई हैव चेंज मेनी ट्रैक्स एंड मेनी बिजनेसेस. कभी सीईओ, तो कभी बिजनेसमैन, तो कभी कोच, तो कभी कुछ. तो लोग बोलते तू यार रोज नया क्यों करता है. मैं पूछता हूँ कि मैं कर सकता हूँ इसलिए करता हूँ, आप कुछ छोड़ के नया करके दिखाओ. तो एक बात मेरे को जो सीखने में मिली है कि आप कभी भी किसी से बंधन में मत रहो. आपको बोला जाए कि कल अफ्रीका जाना है 2 महीने के लिए, तो आप बैग उठा के चल दो. 6 महीने के लिए बोले तो भी तैयारी रखना चाहिए. तो आपको अपने आप को इतना लाइट और डिटैच रखना चाहिए. तो मैं आई हैव लर्न. सो इफ टुडे आल्सो, टुमारो आल्सो सम अपॉर्चुनिटी कम एंड आई हैव टू गो समवेयर, लिविंग एवरीथिंग, आई हैव नो इश्यू. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न. बट व्हाई दिस network marketing? I was exposed to this network marketing long back when a foreign company came 25 years back. I was their first networker, and that time there was no kit also, only the paper was given to us. So that time we made 150 first line. 150 first line. First line. पहलू लेगा ना, first line. First level. Okay, first level. Right. First level. Then we realized अरे ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और हमारे से ज़्यादा दूसरों ने हमको डरा दिया. Correct. And then we left the thing, and then in between also I tried some companies.
I was also part of an network marketing company where we sold 10,000 2 night 3 day package as a networking concept. Right. So that was done. And then off late I was thinking, अरे ये मेरे बस का बात नहीं है and all that. Then thanks to Bakul ji and his vigorous this thing, 6 months networking as a concept is wonderful concept. Absolutely. Because it is because so many things. One is that because of technology, it is possible to keep detailed account of everything. Sir, इसने कितना भी one more question I want to ask here and stop you here. हाँ Let's see, as you said that you have come across to number of companies, right? And some companies where you could do something, and some companies where you somehow couldn't get result, produce result. Sometimes it happens to a traditional business owner who has done 100 crores of turnover. Even for a product called like वास्तु के business में 7-8 crore cross करना it's such a big achievement. Normally होता नहीं है. और यहाँ जब उसी व्यक्ति को जब डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा भी फेलियर मिलता है या फिर वो एक बार एक पैटर्न से आप काम करते हो और ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना रेजिमेंटेड आपका जो एक इनपुट्स होते हैं बिजनेस के वो यहाँ देने के बाद भी उतना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है तो जैसे आपने बताया हताशा आ जाती है निराशा आ जाती है तो क्या आपको लगता है व्हाट इज योर मैसेज नाउ टू पीपल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग और ये आपका माइंडसेट और ज्यादा स्ट्रांग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ ऐसा कैसे बना व्हिच इज स्टिल बिलीविंग दैट यस दिस इज द बेस्ट बिजनेस दिस कैन बी डन so I came at the age of now 65 and अभी कोई जगह जॉब करना या नौकरी करना थोड़ा डिफिकल्ट है और कोई बिजनेस का डील करना ये करना वैसे तो कर सकते हैं बड़ी बड़ी डील की है और भी कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यूसली मिलना पॉसिबल नहीं है और अभी 65 की एज होने के बाद बिकॉज अभी लोगों की उम्र बढ़ गई है तो 85-90 भी जा सकते हैं तो और 25-30 साल कहाँ से इनकम आएगी कैसे आएगी वो भी एक डरावना पिक्चर है सबके सामने मेरे सामने भी है एंड आफ्टर कोरोना है व्हाट हैज हैपेंड तो व्हेन कोरोना हैपेंड आई टोल्ड 2-3 पीपल दैट अब से सबसे ज्यादा बिजनेस चलेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग का चलेगा बिकॉज एक तो अच्छे आदमी का बिजनेस और इनकम अपॉर्चुनिटी या इनकम जो उसका फ्लो था वो इफेक्ट हो गया है अच्छे का इफेक्ट हो गया है और जिसका अच्छा है उसको भी ये नहीं मालूम कि कल उसका क्या होगा बड़े जॉब्स तो पूरे इनसिक्योर हो गए हैं और अभी हर जॉब में परफॉर्मेंस के ऊपर सैलरी पैकेज मिलेगा सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन किसी को भी थोड़ा सुस्ती है वो काम मिलते रहेगा ऐसा नहीं होगा सो दैट इज हैपेंड एंड सेकंड थिंग इज व्हिच हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ नो टच ऑफ कोरोना टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग हैज गॉन वेरी वेल जूम आ गया जूम पहले भी था लेकिन किसी को मालूम नहीं था मुझे याद है कि मुझे भी 5-6 जूम के मीटिंग के ऑफर इनविटेशन आए थे लेकिन मैंने खोल के भी नहीं देखा लेकिन पहले तो वेबिनार भी होते थे जूम के बिना ये यूट्यूब वगैरह पे होते थे लेकिन कभी नहीं गए लेकिन जूम ने हमको कोरोना ने हमको मजबूर कर दिया कि हम जूम पे जाए तो वैसे हर बिजनेस में हुआ है पहले लोहे का काम कंस्ट्रक्शन का काम एक लेडी नहीं कर पाती थी आज कर पाती है क्योंकि सब कंप्यूटर पे काम होता है सही बात तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस जूम एंड दिस व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग नाउ एनीबडी कैन डू एनीथिंग अक्रॉस इंडिया सिटिंग एट हिज होम तो ये एक गुण है जिनको बहुत लोग को जिनको बाहर जाने के लिए एनर्जी नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है या उनको और भी कोई जवाबदारी है तो यहाँ पे तो आप घर पे बैठ के सब कुछ कर सकते हो 9:45 बजे खाना खा सकते हो 9 बजे मीटिंग अटेंड कर सकते हो और 10:30 बजे सो सकते हो तो नाउ इट इज वेरी फ्लेक्सिबल सो नाउ lot of people who want to do something and previously they were not able to do something they will join this business and for people like me 65 हो गए अभी क्या करना है एक्सपीरियंस भी बहुत है लोग भी बहुत जानते हैं लोग अपनी बात भी सुनते हैं तो नाउ इट इज वेरी इजी टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ नेटवर्क सिटिंग एट होम वेरी इजीली और ये जो पैसिव इनकम है ये बोलने को पैसिव है लेकिन काम करते करते मैसिव हो जाती है वाओ वेरी ट्रू सो इनिशियल स्टेज में नहीं पता चलता है दैट विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स यू फील दैट द अमाउंट और इनकम इज वेरी स्लो एंड स्मॉल
but it grows exponentially. That is why we call it that network is an exponential growth. सर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी. काफी लोग हैं जिनको एक्चुअली नीड भी है इस बिजनेस की, बट दे आर मिस अंडरस्टैंडिंग द होल नेटवर्क कॉन्सेप्ट. शायद ऐसा लगता है कि they are guided by people those who have no knowledge about it. They are given some information and half information is more deadly. That is what I feel. So इन लोगों के लिए आपके क्या सजेशंस है, क्योंकि आप 2-3 और अलग अलग कंपनियां ऑलरेडी कर चुके हैं और जहाँ पे भी आपने सीखा, आपने वो अगर वो सोचा होता, हो सकता है कोई कंपनी गलत भी होगी उसमें, आपको खुद नहीं पता होगा, लेकिन now still at the age of 65, as you are saying, your mindset is very strong about network marketing and the future of direct selling industry. तो वो मिसकंसेप्शन को लोग कैसे दूर करें? कभी कभी हम सुनने में भी आता है, लोग बोलते हैं पिरामिड स्कीम है, ये तो यहाँ ऊपर वाला कोई बैठा है वही कमाता है, जो जूनियर है या नीचे वाला है वो तो पूरी जिंदगी उसको हमेशा सर्व करते रहता है, मेहनत करते रहता है. तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हर घरों में डिस्कस होती है. तो आपका क्या सजेशन है? शायद आपके एक्सपीरियंस से हम हमारे दर्शकों को ज्यादा अच्छी तरह से इस बात को बता पाए. सबसे पहले जो है पिरामिड शेप की बात. राइट सर. पिरामिड शेप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप इन द वर्ल्ड. ओके. क्योंकि इसका बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है. राइट. अभी आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी भी लेते हैं तो उसमें चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर, ये वो करके वो भी पिरामिड है. ओके. गवर्नमेंट का सिस्टम है वो भी पिरामिड है. एंड ओवर द वर्ल्ड ये जो सबसे बढ़िया जो सिस्टम पाया गया है वो पिरामिड का पाया गया है. राइट. खाली उसको नेगेटिव कॉन्नोटेशन में यहाँ देखते हैं. राइट. अभी द होल चैलेंज ऑफ लाइफ इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव. राइट. बट हम लोग डिफॉल्ट मोड में नेगेटिव है. ओके सर. डिफॉल्ट मोड में नेगेटिव मतलब? तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट. ओके. So the moment you are born, okay, the word will tell you what not to do. Okay, right. तो माँ बोलेगी आ नहीं कर, ये नहीं कर, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, ये नहीं. They might be saying because of caring or because they want to make safeguard you. लेकिन no चलता है. Right. तो साइकोलॉजी में ऐसा बोला जाता है कि 10 साल की उम्र तक आपको 14 लाख बार नो बोला गया है. ओहो, 14 लाख बार. हाँ, तो आपको 14 लाख बार आपके इसमें फीड हुआ है नो. अब वो उसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा. जी सर. तो बहुत आंधी तूफान बाहर चल रहा है. Okay. और कोई आपको बोला चलो बाहर चलते हैं, तो आप बोलोगे नो. और वो बोलता है विल यू हैव आइसक्रीम, तो बोलेंगे या. तो हमने उसका अभी नया फॉर्मूला किया. नेगेटिव से नेगेटिव इन 1 लाइन एंड से पॉजिटिव इन 5 लाइन. यू ट्राई, यू विल हैव डिफिकल्टी इन टॉकिंग 5 लाइन. ओके. वेरी ट्रू. सो वी आर ट्यून टू नेगेटिव एंड वी आर 14 लाख बार नेगेटिव हो गया. अब आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग की बात किया. अब आपने उससे नेटवर्किंग बात किया तो वो अपने दोस्त को जाके पूछेगा, चाचा को जाके पूछेगा, 15 और किसी को जाके पूछेगा. तो ये 14 लाख नेगेटिव, वो चाचा 14 लाख नेगेटिव, तो 28 लाख हो गए. तो पॉजिटिव आएगा नहीं. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. अच्छा सर, एक मिनट. हाँ, दूसरा इसमें एक और एक चीज है कि जैसा आपको लगता है ना, आप उसका जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं ना तो वैसे ही लोग को मिलते हैं. राइट. तो अगर आपका किसी चीज के लिए नेगेटिव फीलिंग है तो नेगेटिव फीलिंग वालों को जाके ही पूछते हो, तो आपका बिलीफ नेगेटिव और इम्पैक्ट हो जाता है. राइट. तो अगर नेगेटिव मार्केट अच्छा है बुरा है और कोई दूसरे आदमी से पूछेंगे, उसकी जगह पे रुचि को पूछे या अल्पेश गुज्जर को पूछे, तो बिलीफ चेंज हो सकती है. लेकिन मेरी बिलीफ को मैं संभाल के रखता हूँ, ठोकर नहीं मारने देता हूँ. तो मैं मेरी बिलीफ को इम्पैक्ट करने के लिए वो वैसे ही लोग को पूछता हूँ और मैं मेरी बिलीफ को बढ़ाते रहता हूँ. तो बिलीफ को बढ़ाने की जगह उसको घटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जिस आदमी ने इस काम में सक्सेस किया है उसको मिलना है. तो वो तो कोई मिलता नहीं है. So you go and take advice and take this thing from somebody who is already negative. Right. फिर मैं किसी ट्रेनर को सुन रहा था, अभी 1 महीने से काफी नेटवर्किंग में मतलब मैं घुस रहा हूँ.
एंड सिंस ट्रेनिंग इज माय सब्जेक्ट, तो उसने एक अच्छा फॉर्मूला बताया। तो बोला कोई भी ट्रेनिंग अपना नेटवर्किंग की बात करे और ना बोले तो बोला सब बंद कर दो, क्या कर दो? सब बात बंद कर दो। अच्छा, और उसको बोलेगा तेरा नेटवर्किंग का स्टोरी क्या है, ओके। और उसका नेटवर्किंग डीप में सुनो। राइट, डीप में सुनेगा तो आपको पता चलेगा उसने सिस्टम के हिसाब से काम नहीं किया, ओके, उसके अपलाइन ने सिस्टम के हिसाब से काम नहीं किया, या कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, या कंपनी अच्छा नहीं था, सिस्टम अच्छा नहीं था, ऐसा कभी नहीं आएगा। राइट, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। एब्सोल्युटली। तो वो एक है। तो अभी मैंने लाइफ में सीखा है कि कोई भी काम नया करने जाओ तो दो बात है। आप यू आर मैरिड? जी सर। हाँ, तो शादी करने के पहले राइट, अगर आपने पूछा था कि रात को बिस्तर कौन लगाएगा, सुबह का दूध कौन करेगा, ये बच्चा रोएगा तो कौन उठाएगा, क्या करेगा, तो आप कभी शादी नहीं करते थे। सही बात है। तो दुनिया में हम जब काम करते हैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे चालू करने के पहले, नहीं होगा तो काम होएगा ही नहीं। शादी भी नहीं होगी। शादी भी नहीं होगी, मतलब मैं वही बोलता हूँ, इसीलिए पूछा। तो इसका है कि आप एक बार काम में लग जाओ पॉजिटिव माइंडसेट से, और जैसा फोर्ड ने कहा, यू बिलीव यू कैन डू और यू बिलीव यू कैन नॉट डू, बोथ टाइम यू आर राइट। करेक्ट, तो आपकी सोच के ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बोलता हूँ कि आप पूरा दुनिया पूरा दूर तक आपको नहीं दिखने वाला है, जितना दिखता है उतना चलो, जब वहां पहुंचोगे तो आगे दिखेगा। बाकी जगह पे तो आदमी कर लेता है, नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा एनालिसिस करता है, तो एनालिसिस बिकम पैरालिसिस। राइट, अच्छा, दूसरा ये भी देखने का है कि हमने भी बिजनेस किया, मैंने भी किया, 5 बिजनेस में सक्सेस हुआ, 5 बिजनेस में फेल हुआ, 5 बिजनेस में फेल हुआ, उससे सीख के आगे बढ़ा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस करना छोड़ दिया। राइट, सो इवन यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस, टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, टेक इट एज अ लर्निंग, और फिर लड़ो। और मैं तो ये देखता हूँ कि आप दूसरे में क्या देखते हो, कोई भी सिचुएशन में क्या देखते हो, आप प्रॉब्लम देखते हो कि पॉसिबिलिटी देखते हो। तो इफ यू लुक एट पॉसिबिलिटी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेरी ट्रू सर। इफ यू लुक एट प्रॉब्लम, अच्छा, इफ यू आर लुकिंग एट प्रॉब्लम, उसका और एक फॉर्मूला है, यू स्टार्ट लुकिंग एट योर ड्रीम। तो इफ यू हैव फोकस ऑन योर ड्रीम, यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी। ड्रीम का एक बहुत बड़ा पंगा है इंडिया में। ड्रीम सबके पास होते हैं, लेकिन औकात में रहे, चादर फैलाने का नहीं, ये वो सुन के वो जाके, तो गलत वर्ड है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है, वो कब्रिस्तान में जाके खड्डा खोद के ड्रीम को गाड़ के आ जाता है और बोलता है मैं अभी प्रैक्टिकल हो गया। सर एक और बात, मुझे आपके साथ बात करके ये सवाल एकदम स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। आई कैन नॉट स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाट ड्राइव्स यू 65 साल की उम्र में? जैसे मतलब जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति को कोई ना कोई चीज ड्राइव करती है। जैसे अगर आपके पास अभाव है किसी चीज का, तो आपकी जरूरत है आपको ड्राइव करती है। आपका बच्चा है, आपके अभी बच्चे को अभी करियर शेप करना है, आपको कुछ उसको एक लेवल पे पहुंचाना है, या तो फिर आपको पता है कि आपने खुद बहुत तकलीफें देखी है तो आप अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें आपको ड्राइव करती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एट द एज ऑफ 65 विद सच अ वेरी स्टेबल एंड वेरी पावरफुल बैकग्राउंड व्हिच यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ, where I don't think so that money is a very massive, मतलब crucial need for you। ऐसा नहीं है कि बिना पैसों के या फिर नेटवर्क मार्केटिंग आप नहीं करेंगे तो फिर आपके घर में कोई भूचाल आ जाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। So this is what I know about you। तो what drives you? आपको 65 साल की उम्र में क्या ड्राइव कर रहा है? और एक और सवाल साथ ही साथ में, आपको क्या लगता है, मतलब does it really gives you better health and energy when you are doing this business or connecting with people? आपको उससे फायदा क्या मिलता है? Now I will give you my life experience and history. I never had enough money. Okay. But मेरा कोई काम रुका नहीं। Okay. मतलब मेरा बैंक बैलेंस 3 लाख 4 लाख के ऊपर गया नहीं, लेकिन मेरा कोई काम रुका नहीं। घर ले लिया, बेटे की शादी कर दी, बेटे की कर दी, गाड़ी है, घर है, सब है। तो I have understood one thing in life, it is not the money, it is your interest and energy which helps you. So
money has never motivated me. When I was the trainer in JC's, I had stayed in all the 5-star hotel of the country और बिल कोई और पे कर रहा था. Right. अभी अभी लेटली मैंने कोई 5 स्टार में बिल पे किया होगा, अदरवाइज somebody else was paying my bill. Right. तो पैसे से ज्यादा access to resources is more important, so which people will take time to understand. Right. But I have understood that very beginning of my life that means sir, आपने जो अपना एटीट्यूड रखा या फिर आपने जो नेटवर्क बिल्ड किया, that created luxury for you as it is, like you know. yeah. वो जो लोग लग्जरी के पीछे भागते हैं कि भी मुझे ऐसी लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी ट्रिप चाहिए या फिर 5-स्टार रिसोर्ट में स्टे चाहिए, तो people crave for it, right? So अब आप मतलब if money is not driving you, I'll tell you. हाँ. when you, I'll tell you. हाँ. yes sir. So money is not a driving force. Okay. Money will come, and money will come only when you create value for others. Wow, amazing. Now I was training advertising newspaper people जो advertising बेचते हैं ना, उनको मैं train करता था. जी सर. तो उसको मैं बोला तू उसको ad मत बेच. You become valuable for him, Very true sir. and he will call you and he will give you ad also. तो मुझे जो इंटरव्यू या मुझे जो अपॉइंटमेंट मिलते थे, it is not for the business, it is for कि अजय को सुनेंगे तो मजा आएगा. Yes. So that is what I created. So my today also the focus is on how can I contribute in the person opposite to me. Right. So एक लैंडमार्क फोरम है, आपने नाम सुना होगा. जी सर. जी सर. तो लैंडमार्क फोरम में बीइंग पे बहुत बात होती है. तो उधर मैंने बीइंग मतलब मैंने मेरा बीइंग पहचाना. इट इज ऑफ कंट्रीब्यूशन. So I will contribute in every way, in each and every way, and that has given me fantastic energy. So if you are contributing in each one life, your life is taken care of. जैसे अब शादी में जाते हैं ना, तो वो इत्र छिड़कते थे पहले. जी सर. अभी तो मशीन आ गई है, पहले हाथ से छिड़कते थे. तो Yes. सबसे ज्यादा इत्र है ना, वो छिड़कने वाले पे ही होता था. वाह, बिल्कुल सही बात है सर. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आपकी आने वाले 5 साल में आपका विजन क्या है सर? मेरा विजन जो कोरोना के बाद में बदला है, जी सर. तो टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन 10 साल फास्ट फॉरवर्ड हो गए. ओके. और ये जो ट्रैवलिंग था, ट्रैफिक था, ये सब अभी नहीं रहेंगे, क्योंकि आदमी घर के बाहर निकलने का ही उसको जरूरत नहीं है. और पहले का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था कि आपको जॉब मिल गया, आप काम करो नहीं करो सैलरी मिलता है, वो चला जाएगा. तो प्रॉफिट पे इतना सिस्टमेटिक हो जाएगा कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो यू आर आउट. सो लॉट ऑफ पीपल विल गो आउट ऑफ दिस सिस्टम. पहले बोलते थे 4 घर ले लो भाड़ो आपसे, 4 ये करो वो करो, वो भी नहीं चलने वाला है. क्योंकि मुंबई में फ्लैट लिया है और मुंबई में कोरोना है, तो मुंबई का खाली फ्लैट छोड़ के इंदौर आके रहना पड़ा मेरे को. राइट सर. तो आप जिसको वैल्यूएबल समझते हो, कल उधर एक छोटा सा वायरस आ गया तो वो जीरो हो गया. तो वैल्यू विल चेंज ड्रास्टिकली. सो नाउ हियर द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल इन लाइफ. जितने नीचे आपके ज्यादा लोग काम करते हैं, उतना आपका इनकम ज्यादा आएगा. राइट. तो इसीलिए बिरला है, टाटा है, उनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं. अभी पीएम के नीचे भी हजारों लोग काम करते हैं, इसलिए वो बड़ा आदमी है. तो एक साधारण आदमी वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकता है? तो आप 5 आदमी से ज्यादा लोग को जॉब पे नहीं रख सकते हो, सैलरी कहाँ से आएगी? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लाखों लोग को जोड़ सकते हो. वो लोग आपके लिए काम करेंगे, उनको भी कमाई आएगी, आपको भी आएगी. तो इससे अच्छा ब्यूटीफुल सिस्टम किधर भी नहीं है. तो मैंने जो एक जोड़ने वाली बात पे एक और सवाल. जब जुड़ने का नाम आता है ना, लोग बहुत डरते हैं. तो आपका उसके ऊपर क्या टिप्पणी है? लोग कहते हैं अरे जोड़ने वाली बात मत करो, और कुछ जुड़ने वाला है हमें नहीं करना है. तो उसके ऊपर आप क्या हमें? तो इसको अगर आप स्पिरिचुअल सेंस में देखेंगे, जी सर, अगर आप जोड़ नहीं सकते तो आप जी नहीं सकते. ओके. सो यू हैव टू बी इंक्लूसिव विद एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. तो वो थोड़ा स्पिरिचुअल ज्यादा हो गया, लेकिन जुड़ने का मतलब ये है कि जोड़ने का मतलब ये है कि अपने कमाई के लिए नहीं जोड़ना है.
उसके जिंदगी में फर्क आए, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, वो अपनी जिंदगी में एक आशा की किरण दिखे, उसको आप में एक होप नजर आए, इसको जुड़ना बोलते हैं। वाओ, अनबिलीवेबल, बहुत सुंदर सर। So there are some people which you have met in our network. They have seen new light after joining with me in network. राइट अगर सर, वो आपने किया तो जोड़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सही बात, अभी भी मैं बोलता हूँ, आपके मोबाइल में 500 आदमी हैं, राइट, फिर भी नेटवर्क में जोड़ने के लिए आपको फेसबुक में ऐड डालना पड़ता है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। बिल्कुल सही बात है सर। तो तेरे 500 आदमी तेरे सगे नहीं है, तो नया कहाँ से तेरा सगा होगा? समथिंग इज रॉन्ग इन यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम इज, आपका खुद का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हाँ, तेरे को 500 आदमी के, 2000 आदमी के, उसमें से 6 आदमी तेरी बात नहीं सुनते हैं, तो क्या होगा? तो आई हैव मेड अ सिस्टम इन माय माइंड इन सच अ वे that if I ask somebody for something, राइट, I will ask such in a way that he feels that I am contributing to him, राइट, and it is genuinely done. So if you are genuinely looking for somebody to grow in life, now मैं आपको बताता हूँ, हमने बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत सारे काम किए, राइट, और बहुत सारे बिजनेसमैन को मैं जानता भी हूँ। उसके पास गाड़ी आ गई, मर्सिडीज आ गई, BMW आ गया, प्लेन आ गया, उसका स्टाफ अभी साइकिल से मोटरसाइकिल पे ही आया है। राइट सर। लेकिन ये एक बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आपकी पूरी डाउनलाइन के पास आपसे अच्छी गाड़ी आ सकती है। क्या बात है सर, बिल्कुल सही है, ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में ये पावर है कि आप अगर चपरासी को भी अपने साथ जोड़ते हो, बट उसको अपने लेवल का कोई भी अचीवमेंट आप अचीव करवा सकते हो। वेरी तो ये पिरामिड किधर है? सही बात, इक्वल है, ऊपर से इक्वल है, इक्वल है, पिरामिड नहीं है। ये इधर पैराडॉक्स है पिरामिड, लेकिन है इक्वल। राइट सर, तो हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा, अभी क्यों पॉसिबल हुआ है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एक एक पैसे का हिसाब हो सकता है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी है। राइट सर, अभी मेरे साथ कोई जुड़ता है तो मुझे 2 सेकंड में पता चल जाता है, उसने कुछ खरीदा तो मुझे पता चल जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी है। राइट, सेकंड, आपने देखा है तो फैमिली सिस्टम, बिजनेस सिस्टम टूट गए। जी सर, वो इसलिए है कि जो आदमी जितना काम करता है उसके हिसाब से उसको पैकेज नहीं मिलता है, रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है, क्योंकि फैमिली में इमोशन पे चलता है, तो वो सिस्टम टूट गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है कि जो चलता है फैमिली सिस्टम पे, लेकिन रिवॉर्ड का सिस्टम अलग ही, बहुत साइंटिफिक है। वेरी ट्रू सर। सर, तो ये आपने यहाँ बहुत ये आपने बहुत सही बात की। मैं चाहती हूँ इसको भी थोड़ा और डिटेल में समझाएं, हाँ, क्योंकि ये ऐसी बात है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझना जरूरी है। जो आपने बताया कि जहाँ फैमिली बिजनेस होता है वहाँ इमोशन की वजह से इनकम भी नहीं है, और यहाँ पे फैमिली बिजनेस की तरह का बिजनेस है, लेकिन रिवॉर्ड उससे कहीं गुना ज्यादा तो है। मैं आपको दिखाता हूँ फैमिली बिजनेस जो होता है, जी सर, उसमें आपने देखा होगा पूरी फैमिली में 20 आदमी है, काम 2 ही आदमी कर रहे हैं। राइट, और और- दो बोझ ढोर है 18 का। हाँ, और तो दूसरे लोग को लगता है, जो उसकी बीबी होती है वो बोलती है, अरे तुम इतना काम करते हो, वो तो नहीं करता, ये नहीं करता है, क्योंकि वहां पे रिवॉर्डिंग सिस्टम डिफॉल्ट है। वेरी ट्रू सर। तो रिवॉर्डिंग सिस्टम डिफॉल्ट होने से कोई भी सिस्टम डिफॉल्ट रहेगा तो ज्यादा नहीं चलेगा। जी, तो नेटवर्किंग में क्या है कि सिस्टम ऑफ रिवॉर्डिंग इज सो ब्यूटीफुल, सो ट्रांसपेरेंट, सो डेमोक्रेटिक, कि कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करता है या खराब करता है, उसको रिजल्ट दिख जाता है। जी, इसमें नॉनसेंस और ब्लफिंग कुछ नहीं चलता है, जी सर, तो सब दिखता है। मतलब वो छलनी में छल जाते हैं ना, वैसा खट 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 गिरता है। अच्छा है वो गिरता है, खराब है वो बाहर निकल जाता है। तो ये फैमिली सिस्टम भी है, जी यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट भी है, फैमिली का कल्चर भी है, सब कुछ है। उसके साथ साथ में रिवार्डिंग सिस्टम साइंटिफिक है। जी सर, तो रिवार्डिंग सिस्टम साइंटिफिक होने से किसी का मन दुख नहीं होता है और सब अपना मोटिवेशन से काम करते हैं। तो ये फैमिली बिजनेस का जो टूटने का जो उसका जो मेथड था, उसी को नेटवर्क मार्केटिंग ने अच्छी तरह से पकड़ा है, और यहाँ पे काम करने का जो रिवॉर्ड है वो बहुत साइंटिफिक तरीके से बना दिया है। तो फैमिली का फैमिली है और रिवॉर्ड सिस्टम है, तो इट इज अ वंडरफुल सिस्टम। राइट।
और सर एक और बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है कि आप बिजनेस का पहला साल जो है उसकी प्रोसेस में बहुत स्ट्रगल महसूस करते हो क्योंकि हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई बिजनेस है, शुरू में पैसा कम आएगा और ग्रोथ प्रोसेस टाइम टू टाइम होगा और उस दौरान में बहुत सारी लर्निंग होती है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई अपने घर से सीख कर नहीं आया है। हमारी स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में ये सब्जेक्ट ही नहीं है जहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक भी जान पाए। एमबीए नहीं में भी नहीं, नहीं सिखाया जाता, कहीं सब्जेक्ट नहीं है, सिखाया। सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। ओके। लोगों के साथ रहना कैसे, वो सब्जेक्ट है। राइट। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। वेरी ट्रू। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बीइंग विद पीपल, बट शायद वो हमने अच्छी तरह से सीखा नहीं, सीखा बट नहीं। और नेटवर्किंग में आके हम सीख रहे हैं। और क्या हुआ है, स्कूल में ही उसको कंपटीशन सिखाया है कि तू वेरी पहला ट्रू। नंबर ला। राइट। तू पहला ला मतलब बाकी सब पीछे रह जाना चाहिए। हाँ, तो कॉर्पोरेट में आके भी उसको तकलीफ होती है, सही बात है सर। क्योंकि कॉर्पोरेट में कंपटीशन नहीं होता है, कॉर्पोरेशन होता है, तो वहां भी इसको इश्यू आता है। दूसरा, इट्स ए नेचुरल लॉ दैट झाड़ जब उगता है तो उसको टाइम लगता है। जी, सही बात है सर। कोई भी फसल को उगने में टाइम लगता है, तो उसको भी फास्ट प्रोसेस करने का कोई 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 मेथड ही नहीं है। तो यू टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ नेचर कि इसको टाइम लगता है। तो दिस इज इन एवरीथिंग। राइट सर। तो आपको मदर बनना है, फादर बनना है, स्टूडेंट बनना है, टीचर बनना है, जो भी बनना है, उसको टाइम लगता है। तो टाइम इज द ओनली थिंग। और आपका जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतना उसमें आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, योर फ्यूचर विल कम वेयर योर टाइम गोज टुडे। राइट। अच्छा, तो सबसे बड़ा जो एक चीज है, मैं आपको अभी यहाँ बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम एंड इट्स ए वंडरफुल पावरफुल सिस्टम। बट अभी मैं एक श्लोक, एक कोट बोलता हूँ, बाद में आप समझना। जी सर। यू आर एज पावरफुल, राइट। you are as powerful to the system you are surrendered to. ओके। So there is a surrendering word in the this thing. अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसका एक सिस्टम है। राइट। मैरिज ऑल्सो इज a system. करेक्ट। Parenting is also a system. Everything is a system. School is also a system. College is also a system. Municipality is also a system. So राइट। to get the power of the system, you have to surrender to the system. सर ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी क्योंकि हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर की अगर हम बात करें तो हम अगर उपनिषद बोलते हैं तो उसे भी वही कहते हैं, एट द फीट ऑफ मास्टर। So I will give you. Sorry. if you surrender yourself at the feet of your master, ultimately you can become and you can even become all the more powerful like him. तो सरेंडरिंग, समर्पण का भाव जो है, जो आप बता रहे हैं, वो हर जगह है। राइट। समर्पण भी नहीं है, ये सरेंडरिंग है। सरेंडरिंग ने उसने बोला वो करने का, उसमें सोचने का नहीं। ओके। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड विच इज द फैंटास्टिक एग्जांपल, आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। जी सर। कि एक बंदर था, हाँ जी। उसने भगवान को सरेंडर किया। ओके। टुडे ही इज बिगर देन दैट भगवान। तो जो हनुमान जी हैं, उन्होंने राम जी को सरेंडर किया। आज जितने मंदिर हनुमान के उतने राम के भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। तो यू कैन बिकम एज पावरफुल एज यू आर सरेंडर टू ए सिस्टम। अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इंडिया में है, हर आदमी को अपना स्टोरी चलाना है, कोई को सिस्टम में नहीं आना है। तो खाली एजुकेशन इंडस्ट्री में फ्रेंचाइजी चल रहा है और बाकी सब में फ्रेंचाइजी सिस्टम नहीं चल रहा है। इसका मेजर रीजन है कि हमको डिसिप्लिन में रहने का आदत नहीं है, हमको अपना स्टोरी चलाना है। तो ये जो सिस्टम है नेटवर्किंग का, इफ समबडी सरेंडर टू हिज कंपनी के जो सिस्टम है, प्रोसेसेस है, जो उसको अपलाइन बोलता है और जो भी वो सीनियर से सीखता है, अगर वो जो बोला गया वो करेगा, तो आप कोच रह चुकी है, आपने भी देखा होगा बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता है कि हम लोग जो उसको बोलते हैं वो करता नहीं है और बाद में अगले साल वो रिन्यू करता नहीं है। तो गलती अपनी नहीं है, गलती उसने किया ही नहीं है। तो एनी सिस्टम कैन बी पावरफुल टू यू, एनी सिस्टम कैन गिव यू ऑल द पावर्स टू यू, यू हैव टू सरेंडर टू द सिस्टम।
और आधे मन से किया और थोड़ा करूं थोड़ा नहीं करूं, थोड़ा इधर छुपा लूं थोड़ा उधर छुपा लूं, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा तो बोलना है कि जैसे कोई भी काम करना है उसके बारे में सब जानकारी ले लो, उसका सब ऊपर नीचे नेगेटिव पॉजिटिव सब देख लो। एक बार डिसाइड करने के बाद में नो क्वेश्चन, सो यू कैन नो अबाउट योर गुरु, बट वंस यू नो द गुरु एंड मेक हिम द गुरु, नो क्वेश्चनिंग द गुरु। पहले गुरु बनाने के पहले देख लो, लेकिन बाद में आपको बंद करना है। तो मैंने भी जब ये काम वापस चालू किया अभी 2 महीने पहले, तो पहले मैंने मेरे अपने आप को सेट किया कि क्या है, मतलब मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव है, तो मैंने खुद ही निकाले और कुछ 4-5 लोगों से मैंने सुना भी देखा भी, तो मुझे उसमें और थोड़ा हेल्प मिला। तो बिफोर आई वाज टॉकिंग द रिजल्ट्स वर नॉट कमिंग, बट व्हेन आई क्लियर्ड माय माइंड एंड वर वेरी एब्सोल्युटली क्लियर कि अभी मुझे ये करना ही है, तो वर्डिंग तो शायद वही रहेंगे लेकिन इफेक्ट अलग आने लग रहा है। नाउ इवन इफ आई टॉक टू समबडी फॉर 3 मिनट, ही सेंड्स मी हिज आधार कार्ड। वाह। जूम मीटिंग में बाद में आता है। बाद में आता है, बाद में आता है, भेजता है, पहले तो भेज देता है सब। सर ये ऑरा का भी कमाल होता है क्या? हमारा ऑरा वर्क करता है? ऑरा क्या है? जी सर। आपके अंदर का इंटेंशन, दैट इज योर चॉइस। करेक्ट। आपको अपने अंदर क्या भाव रखने हैं। वो जैसे आइसक्रीम खरीदने जाते हैं कि मैंगो चाहिए कि सीताफल चाहिए कि स्ट्रॉबेरी चाहिए, यू कैन सिलेक्ट योर इंटेंशन, और वो इंटेंशन अगर सही है तो उसी का प्रभाव सामने बाहर आता है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके मन के प्रभाव अच्छे नहीं है तो बच्चा भी आपके पास नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है सर, करेक्ट। तो जानवर भी भाग जाते हैं, तो दैट इज देयर। सो इफ यू नाउ द होल नेचर का जो लॉ है, इट इज ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो नदी खुद का पानी नहीं पीती है, पेड़ खुद के फल नहीं खाते हैं, सब दूसरों के लिए है। तो आपको किसने बोला कि सब आपके लिए है? सही बात है। सही बात है। So if you come with a contribution, then everything comes. So I will give an example of Mother Teresa. Very old lady, very frail lady, बहुत ही, लेकिन वो 40 करोड़ लोगों, 4 करोड़ लोगों को रोज खाना खिलाती है। तो ये उसका मिशन है। The mission gives her power. Very true, sir. Very true. So if your mission is bigger than you and it is for benefit of people, you get power. तो अगर आपका ये ध्यान है कि मुझे सबका भला करना है, तो आपका भला तो पक्का है। सही बात है। सर दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग को आप आने वाले समय में मतलब अपने लिए या फिर इस कंट्रीब्यूशन के एटीट्यूड को लेकर आपका मिशन क्या है? एंड वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन कमिंग 5 years टाइम थ्रू दिस सिस्टम? एक तो है कि ये ग्रोथ इंडस्ट्री है, राइट, और ये बढ़ने वाली ही है। और टुडे आई सी वन मोर थिंग कि बिजनेस में वी विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन रनिंग द बिजनेस, राइट, वेरियस फैक्टर्स। तो लोगों को साथ में मिलके बिजनेस करना होगा, और नेटवर्किंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ लाखों लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और कंपनी बाकी सब काम कर रहे हैं। जी सर। तो एक बिजनेस चलाने में 50 काम होते हैं, तो 48 तो कंपनी कर रही है, राइट, और आपका चेक भी वही लिख के दे रही है, तो और क्या चाहिए? सही बात। तो इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड पीपल लाइक मी 65 के हैं, और अगर समझो मैं 85 तक भी जिया तो मेरा हर मोमेंट किसी प्रोडक्टिव काम में जाएगा। क्या बात है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत ही सुंदर बात की आपने। समथिंग this clarity is something like, you know, for young people like us also, it's driving force कि हमें अभी से ये सोचना चाहिए। So अभी जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैंने नेटफ्लिक्स चालू किया, फिर MX प्लेयर किया, फिर और किया। अभी जब से नेटवर्किंग ज्वाइन किया तो टाइम ही नहीं है। राइट। तो आपका जो मोमेंट टू मोमेंट जो जीना है वो फालतू काम में जा रहा था। जी सही बात। अभी इतना काम है कि इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, उससे बात कर लो, इसको ये समझाओ, उसको वो समझाओ। राइट सर। तो थिंग्स आर हैपनिंग इन द लाइफ,
प्रोसेस एंड इफ यू हैव हैपनिंग थिंग्स इन लाइफ, आपको बीमारी नहीं आएगी, आप अच्छे रहोगे और सबका भला होगा. तो फ्रॉम पैसिव टू मैसिव इनकम. सो अभी तक हमने एक्टिव टू पैसिव तो सुना था, बट वी आर हियरिंग दिस फर्स्ट टाइम फ्रॉम यू पैसिव टू मैसिव. Yeah. So that itself is It's a paradox. It's a paradox. Right. But paradox is the way of life. Absolutely, sir. हम लोग समझते हैं कि पैराडॉक्स है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे सस्ता है तो खराब होगा, महंगा अच्छा है तो महंगा होगा. तो अगर आप दोनों पैराडॉक्स को कंबाइन करते हो, देन देयर इज वंडरफुल थिंग. सबसे पहले पार्ले ने किया, मीठा भी था, नमकीन भी था, क्रैक जैक. So it's become a hit. So you should learn that life is not either this way or that way. It can be both the way. क्या बात है सर. मतलब ऐसा लगता है कि I keep asking you, and the spirituality of you in network marketing or through network marketing is unfolding. There are so many things we are understanding that network marketing is definitely giving you a luxurious life. So it's definitely going to give you a good money, but it is much more bigger and deeper reason for so many people to do it. This is what you are sharing. के ऐसा मत सोचिए कि फिर पैसा आने के बाद भी I think success is possible, but this comes with a package, success and happiness both. So you are sorry आप बोलिए. जी. So वो जो आप जो बता रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि like you know ब्लेजर एक्टिविटी या फिर कुछ ऐसे काम जहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है, which is going to give you dullness all the time, and यहाँ पे आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो. Yes. So I will tell you one more thing. You are a trainer, I am a trainer. जी सर. हमको ऑडियंस चाहिए और सस्टेन होने के लिए पैसा चाहिए. जी सर. यहाँ आपको ऑडियंस मिल गया, पैसा आपको कंपनी दे रही है, और क्या चाहिए. सही बात है सर. So even a person who cannot pay you single rupee, उसको नेटवर्क करने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर भी कंपनी आपको पैसा देगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सही बात. So it's a win-win situation. It's a win-win situation. And the last question before we part, sir, what message you have to share to our young audience, जिनकी उम्र करीबन 25 से 45 साल की है, कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरह से, किस नजर से देखें. तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे यंगस्टर्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है? तो इसका एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. He has to get touch with himself and find out where his dreams were, और जिसको उसने दफना दिया है, वो ड्रीम को रीएक्टिवेट करना है और किसी अच्छे पॉजिटिव माहौल में अपने आप को पॉजिटिव करना है. उसका ट्रेनिंग अभी YouTube पे फ्रीली बहुत अवेलेबल है. जी सर. आपको चाहिए उतना मिल जाएगा. ऐसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं. कुछ नहीं, आराम से खाली जियो को 499 3 साल का 3 महीने का दे दो, तो आपका आ जाएगा पैकेज. और whatever you hear, negative, positive, don't go by that. Apply your mind. अलग अलग लोगों से पूछो, डाइवर्स लोगों से पूछो, और फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करो. You will find lot of things are running automatically on wrong belief. और वो बिलीफ पे कोई सोच नहीं रहा है, तो आपको उस पे सोचना है. और लाइफ का मजा जब है जब आपकी हॉबी, आपका पैशन हो जाए, आपका बिजनेस हो जाए. और आज की तारीख में ये पॉसिबल है. इसके लिए अगर आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग या कोई पैसिव इनकम का कोई जरिया बना लिया और लोगों के साथ मिलके जुड़ के अगर आपने कोई सिस्टम बना लिया, तो यू विल नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ कंपल्सन. Nowadays even wife is there in your house because of compulsion, क्योंकि वो बाहर कमा नहीं पाएगी. तो नोबल जॉब ऑफ हाउसवाइफ इज आउट ऑफ कंपल्सन. तो कंपल्सन में जीना अगर छोड़ना चाहे तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली वे. क्या बात है सर, आपने एक बहुत सिंपल तरीके से ये बात को बताया और मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ. और वैसे जब एक हाउसवाइफ भी इस बिजनेस को करने लगती है ना, तो जब पहले बिजनेस नहीं करती थी तो उसका ओपिनियन भी घर में मायने नहीं रखता था. लेकिन जब आप एक अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर लेते हो, आप अपने लिए तैयार हो जाते हो, आपके काम से आप एक मतलब बड़े बनने की प्रोसेस में चले जाते हो,
कहीं ना कहीं आपके परिवार वालों को भी आपकी वैल्यू समझ में आती है और आपका ओपिनियन मायने होने लगता है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि इन माय प्रोसेस ऑफ दिस कोचिंग करियर एंड ट्रेनिंग एंड ऑल दिस, देयर आर सो मेनी फीमेल जिनके मतलब बड़े-बड़े बच्चे हैं, करीबन कोई 18 साल का है, 16 साल का है। तो आज वो बच्चे उन माँ-बाप को या फिर माँ को, ज़्यादातर माँ को, बाप तो चलो ठीक है, इज़ माँ ब्रेड को अर्नर इन द फैमिली। तो माँ को शायद बुद्धू उसके बाद समझते हैं। माँ, हाँ, पर माँ को ऐसे बोलते हैं, माँ मम्मी तुझे कुछ नहीं पता चलता, मतलब तुझे कुछ नहीं है पता। तो वो एक बहुत फील आती है, उस माँ को सोचकर फील आती है कि बेटा मैंने तेरे लिए अपनी डिग्रियों को मतलब कबड़ के ऊपर रख दिया। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस जिसको बताया नहीं जाता है, जिसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन जब बच्चा एक 16 साल की उम्र में एक मैच्योर एज में आके माँ को बोलता है तुझे क्या पता चलता है, तू तो बस वही है ना, तुझे तो नहीं पता आज का समय कैसा है। दैट हर्ट्स। और वो हर्ट बहुत, वो स्कार होता है, मतलब दाग छोड़ जाते हैं कहीं ना कहीं आपके दिल में, सालों साल तक वो चुभती है बातें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर हाउसवाइफ को भी ये सोचना पड़ेगा, हर होम मेकर को सोचना पड़ेगा कि बच्चे अपनी प्रायोरिटी है। डेफिनेटली नर्चरिंग इज द नेचर ऑफ मदर एंड मदरली एनवायरनमेंट, पर वो सब चीजों के साथ दे हैव टू बी बिल्ड देयर आइडेंटिटी आल्सो। तो मान लीजिए आपकी डॉटर इन लॉ या फिर आपकी डॉटर, या आप उनके लिए कैसा सोचते हैं, मतलब डू यू थिंक दैट यस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एन आइडेंटिटी? So I will tell you, the day my daughter became 18, राइट सर। we got her driving license. ओके। और ड्राइविंग लाइसेंस में 1 महीना तो क्लासेस में सीख जाते हैं, बाद में कोई गाड़ी नहीं देता है राइट। और उसको टाइम लगता है। तो आई डिड लॉट ऑफ थिंग बाय विच मेरी गाड़ी लेके वगैरह वगैरह सिखाया, सब किया। एक टाइम आया जब उसका फियांसी था और फियांसी अपनी गाड़ी मेरी डॉटर को नहीं देता था, फिर मैं मेरी गाड़ी निकाल के उसको देता था। फिर जब मैंने नई गाड़ी खरीदी तो पुरानी गाड़ी डॉटर को दी, फिर डॉटर एक्सपर्ट हो गई तो अभी उसको नई गाड़ी भी मिलती है। तो इट इज इन योर दिस थिंग, तो आपको उसको एम्पावरिंग पहले दिन से करना है। पढ़ाना भी है, सिखाना भी है, साइकिल चलाना भी सिखाना है, और उसको डिपेंडेंट नहीं बना के सिखा देना है, खुद कर ले ऐसे करना है। आज उसको ये फायदा है, गाड़ी चलाने को आती है तो खुद गाड़ी लेके चली जाती है। और वुमेन एम्पावरमेंट का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे हम किसी भी वुमन को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं, एंड उसका कोई भी एक्सपीरियंस, नॉलेज जो भी है, उसको टाइम का प्रॉब्लम है, उसकी दूसरी जवाबदारियां है, वो करके भी ये काम कर सकती है और एक ब्यूटीफुल फ्यूचर अपने लिए बना सकती है, एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है। सो एनीथिंग, मतलब मुझे जाने को मन नहीं कर रहा है, फील लाइक कि आप कुछ अपनी तरफ से बताते रहें। हो सकता है कि कोई ऐसी बात किसी को टच कर जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। लाइफ की जो एक्सपांशन आपने की है, जिसकी वजह से हजारों ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हुए हैं, जैसे 600 से ज्यादा कंपनियों को आपने कोच मेंटोर किया है, वर्किंग विद द बिगेस्ट जैन ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, एंड वेयर everyone is knowing who is Ajay Jain, and everything is something where लोग ऐसे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। शायद वो अपनी मुसाफरी में काफी सोचते भी होंगे, आने वाले समय में भी काफी लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई आई विल लीड दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई विल डू दिस दैट। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपकी बातों की क्लैरिटी is going to definitely help. This conversation is going to help n number of people, thousands and thousands of people are listening to this, जहाँ पे होम मेकर भी सुनेंगे तो उनको लगेगा कि yes, अजय जी says that identity is very very important and network marketing can do that. यंगस्टर्स के लिए आपने जो बताया कि they have to find their why, what are their dreams and what is there inside of them. You also shared कि 65 की एज में नॉन प्रोडक्टिव काम करते करते नेटफ्लिक्स देखना या फिर कुछ अपने टाइम को किल करना, तो ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद जैसे आपकी सारी टैलेंट और नॉलेज के बाद भी उसका यूटिलाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो भी अंदर से अच्छा नहीं लगता। जिसने पूरी जिंदगी अच्छा काम किया है वो सडनली अपने आप को हैंडीकैप महसूस करने लगता है। तो एनी सीनियर सिटीजन कैन ऑल्सो एड वैल्यू द वे यू आर एडिंग in our life. You know, young generation like us are learning,
इवन मैं तो आज आपसे बात करते ये महसूस कर रही हूँ, a man who thinks about Mother Teresa in different way, a man who says that network marketing को contribution के point of view से देखिए। ऐसा मत सोचिए कि आप कितना कमा रहे हो, आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, वो तो आना ही है, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। अगर आप किसी की सफलता के साथ जुड़े हो तो आपकी सफलता तो निश्चित है। आप किसी का भला करने के लिए सोच बना रहे हो तो your success is going to be sure. Yeah. अजय जी, any last message you want to share with all of us? So, This platform We Capacitate, sir, जहाँ पे हम चाहते हैं कि the message is alone I am nothing, together we capacitate. Yeah. So there is lot of power in mastermind or 4 or 5 mind working on a single cause. So that is mastermind. So that is a wonderful thing. I will advise anybody to do what he wants by doing all the research. लेकिन उसके बाद में उसको 100% नहीं 110% करना है। लोग 7%, 8% पे रुक जाते हैं, वहां नहीं रुकना है। 100% करने के बाद ही पता चलेगा ये काम कैसे होता है। Right, sir. तो you keep doing and you will find a way. And when you will find the way, people will tell you that you are genius. Wow. तो स्टार्टिंग में जिसको पागल बोलते हैं, तो मैं मेरा खुद का एग्जांपल है। जब हमने बार्टर चालू किया तो मेरे घर में सबने बोला, अरे बार्टर करते तो गवर्नमेंट ने नोट क्यों छापा। तो मेरे मामा बहुत होशियार थे, गांव से उनको बुलाया कि इसको समझाओ। मामा ने 3-4 दिन में बोला, मामा जी मेरे साथ में रहो, आप मेरी बात सुनो, आपको समझ में आएगा। तो मामा ने बोला ठीक है। फिर 5 साल के बाद में जब 100 करोड़ पे कंपनी पहुंच गई तो फैमिली बोलती हमारा बेटा जीनियस है। 5 साल पहले पागल था, मामा को बुलाना पड़ा समझाने के लिए कि तू ना कर। तो पागल से जीनियस बनने का जनरी है ना, वो 110% देने का है। आपके पास प्लान नहीं होगा, रास्ता नहीं होगा, वो भी आ जाएगा। आपके पास कैपेसिटी नहीं होगी, वो भी आ जाएगी। एबिलिटी नहीं होगी, वो भी आ जाएगी। स्किल भी आ जाएगी, आपको लगे रहना है। क्या बात है। So it was actually an amazing conversation and thank you so much Ajay ji for coming on this platform, sharing yourself completely and अपने बहुत सारी बातें एकदम बिंदास तरीके से बता दी। और ऐसा लगा कि जैसे ना मेरे कोई बड़े मेरे घर में जो मेरे फादर हैं या फिर मेरे दादाजी हैं, जिस तरह से बैठ के मुझे बताते, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। तो इस तरह से आपने बड़े I am with you because I can feel younger. वाह। But I feel younger with you, sir. उसका क्या? I feel younger with you. So this is all, you know, as you can say that it's a give and take. It's a journey where we can share lots of joy, lots of happiness, and lots of success stories where we can build so many families and so many lives. So, एक और एक छोटा सा मैं बात करता हूँ। जी सर, जी सर। ये जुड़ने जुड़ाने का जो प्रॉब्लम है ना, हेलो जी सर, ये जुड़ने जुड़ाने का जो प्रॉब्लम है, अगर आप अपने आप को इतना अच्छा बना लो, इतना मोटिवेटिंग बना लो, इतना मैग्नेट बना लो, then people will join you automatically. Right. And people don't join the company, they join you. Very true, sir. Agree, completely agree. So बिल्कुल सही बात बताई। आज it was an amazing session, अजय जी। पहले तो thank you so much once again from core of my heart and it was an amazing sharing. ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाली है। Your success story, your commitment and your dedication at the age of 65, जो कहना अच्छा नहीं लगता। I think a lot of senior citizens they don't like 65. I'm not saying this. I'm just saying for sake of sharing to people that see this is how life has to be. So this is one example. KFC started at 1960 at the age of 67. जी सर, मेरे को अभी 2 साल और है। हाँ, आपके पास 2 साल और है, right sir? So I agree completely and once again thank you so much अजय जैन जो आज हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हुए। उन्होंने शेयर किया हमारे साथ बहुत सारी बातें बताई। कोरोना के चलते अपने घर को छोड़कर कहीं और जाके रहना पड़ा और फिर भी वो कहते हैं कि चीजें बदल रही है, लेकिन आप क्या उसके साथ बदल रहे हो। वो ये कहना चाहते हैं कि हाउसवाइफ को आइडेंटिटी बिल्ड करना जरूरी है,
अगर आप यंग एज में हो, आपको डिसीजन लेना जरूरी है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स टू यू. Even if you are a senior citizen at the age of 65, 66, 67, sitting idle at home doing nothing might definitely uh, get into a lot of other diseases or maybe other illnesses where you're not connecting with people. Let it be a flow. Network marketing आपको एक प्रोसेस देता है जहाँ पे आप बह सको, नए लोगों को मिल सको, अपना नॉलेज शेयर कर सको, किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने से बेहतर क्या हो सकता है. दैट इज व्हाट हिज लाइफ स्टोरी इज ऑल अबाउट. और वो पैसों को इम्पोर्टेंट नहीं देते, लेकिन उनका ये कहना है मनी विल फ्लो, मनी इज अ बाई प्रोडक्ट. उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लाइफ में पैसों की कभी कोई कमी नहीं हुई, जबकि कि बैंक बैलेंस 3-4 लाख रुपए से ज्यादा कभी नहीं बढ़ा था, फिर भी कोई काम अटका नहीं. इसका मतलब इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक. नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो वन प्लेटफॉर्म वेयर हम ये कहना चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनते हो, आप लॉयर बनते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, कोई भी प्रोफेशन में जुड़ते हो, सो सिमिलर वे why can't we have a disciplined life and say why not network marketing. Thank you so much Ajay Jain for joining us today on the show of The Capacitor. Thank you so much.